Open your Bibles to Mark chapter 4 verses 15. मरकुस 4:15 पे अपनी बाइबल I want you to be very attentive और ध्यान देके पढ़िएगा because this word is for you. क्योंकि ये वचन आपके लिए है। Amen. Hallelujah. Are you there? Mark 4:15. पहुंच गए मरकुस 4:15 पे। And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. और ये वो हैं जो बीज रास्ते पर गिरे, जो वचन बोया गया, और जब उन्होंने वचन को सुना, शैतान आया और उसी समय उस वचन को चुरा करके ले गया जो उनके दिल में बोया गया था। Now Jesus told a parable and he is giving the interpretation. अब यीशु एक दृष्टांत, एक कहानी बता रहे हैं और उसका मतलब भी बता रहे हैं। And Jesus is saying that some people who come to the church or people who hear the word, their attitude to receive the word is, it is like the words fall on the wayside. और यीशु बात कर रहे हैं कुछ लोग जो कलीसिया आते हैं या कुछ लोग जो वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जो वचन के लिए उनकी इज्जत है वो ऐसे है जैसे कुछ सड़क के किनारे कुछ पड़ा हुआ हो। I never understood it, so I asked the Lord. I said, Lord, what does it mean that these seeds fell by the wayside? और मुझे कभी समझ नहीं आता कि मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है कि ये बीज रास्ते में पड़े हुए हैं। And he said, और उसने कहा, what do you see on the wayside? तुम्हें जब रास्ते में जाते हो तो क्या दिखाई देता है? What do you see on the wayside? रास्ते में क्या पड़ा हुआ दिखाई You देता only है? see trash. कूड़ा ही दिखाई देता है सिर्फ। When a sweeper sweeps the road, जब झाड़ू मारने वाला पूरा सफाई all the करता है trash is thrown to the wayside. तो सारा कूड़ा एक जगह कोने में इकट्ठा कर देता है। The people who don't honor the word of God, वो लोग जो परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं करते, they just come to church because as a Christian tradition, वो केवल कलीसिया इसलिए आते हैं क्योंकि ईसाई लोग, and they hear the word, और वो वचन को सुनते हैं, but they don't hear the word. लेकिन सुनते हुए भी वचन को नहीं They सुनते। are sitting there, but their heart attitude does not honor the word that is spoken. वो बैठकर सुन तो रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन उनका दिल इज्जत नहीं करता जो बोला जा रहा है उसकी। Okay, guys, I'll go further, but before that, let me tell you one thing. मैं आगे जाऊंगा लेकिन उससे पहले एक बात। The way you receive the word is the way you receive Jesus. आप कैसे वचन को ग्रहण करते हो वैसे ही आप यीशु को ग्रहण करोगे। Some people say, oh, if Jesus was alive in my time, I would have fallen at his feet, I would have worshipped him, poured my alabaster box, the perfume at his feet. कुछ लोग कहते हैं अगर यीशु आज मेरे समय में जिंदा होता तो मैं उसके पाँव में गिरकर उसकी आराधना करता, अपना इत्र का प्याला उसके पाँव में उंडेल देता। You can do that. कर सकते हो ऐसा। You can honor Jesus because the Bible says, John 1:1, in the beginning was the word was with God, and the word is God. When you receive the word with honor, you honor Jesus. आप आज भी वो कर सकते हो। यूहन्ना 1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। आप जो वचन को आदर से ग्रहण करते हैं तो आप उसका आदर करते हैं। Amen. It's not by saying praise the Lord, hallelujah. You know, these are Christianese. केवल जय मसीह की कहने से या फिर हालेलुया कहने से उसकी आराधना है, उसका आदर नहीं होता। When a person comes to church, the first thing he learns is Christianese. जब एक व्यक्ति चर्च में आता है तो पहली बात जो वो सीखता है वो ईसाइयों की भाषा है। It's a language of the church. वो कलीसिया में बोले जाने वाली भाषा है। Praise the Lord. जय मसीह की भाई, जय मसीह। Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. वो परमेश्वर की सारी महिमा परमेश्वर की. You know all these words, and people latch on to these terms very quickly. और लोग इन बातों को पकड़ लेते हैं, जल्दी से बोलना सीख जाते हैं। You don't honor God by saying all these things. लेकिन ये बातें बोलने से परमेश्वर का आदर नहीं होता। Because God is not seeing what comes out from your mouth, He's seeing the attitude of your heart when you're receiving the word. क्योंकि परमेश्वर वो नहीं देख रहा कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, वो देख रहा है आपके दिल में क्या है जब आप वचन को सुन रहे हो तो। Amen. And Jesus is telling a category of people that they are in the church, they hear the word, but they don't honor the word. और यीशु यहाँ पर बात कर रहा है एक तरह के लोगों की जो कलीसिया में हैं, वचन को सुन रहे हैं लेकिन वचन की इज्जत नहीं करते हैं। And it is like that the seeds of the word they fall into the wayside. और ये ऐसा है जैसे जो वचन बोया गया वो कूड़े की तरह सड़क के किनारे गिर गया। And then Jesus said, और फिर यीशु ने कहा, when they hear, जब वो सुनते हैं, Satan comes immediately. शैतान उसी समय आ जाता है। How does Satan come? शैतान कैसे आता है? Immediately. उसी समय। And takes away the word that was sown in their hearts. और जो वचन उनके दिल में बोया गया था उसको छीन कर ले जाता है।
So they come to church, तो वो कलीसिया में आते they हैं, hear the word, वचन सुनते हैं, they leave the church, कलीसिया से बाहर जाते हैं, सारा वचन गायब। they would remember the songs, उनको गाने याद रह जाएंगे, क्या गाए थे, they would remember the testimonies, गवाहियां भी याद होंगी, but Satan has stolen the word, and it was the word that was supposed to bring fruits in their lives. लेकिन शैतान ने उस वचन को चुरा लिया और वो वचन ही था जिसके कारण उनकी जिंदगी में कोई फल आता। Are you getting what I'm saying? Some people can watch test match for how many days? 5 days? 5 days. But in sermon they'll be like, कुछ लोग 5 दिन तक बैठकर टेस्ट मैच देख सकते हैं, लेकिन वचन में उनकी आंखें बंद हो रही होती नींद से। and then you see the fruits in their life, and no wonder they are living in defeat. और फिर उनकी जिंदगी में वही फल नजर आते हैं, और इसमें हैरानी की बात नहीं है कि वो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। It's not rocket science why some people are blessed and flourishing and growing and maturing, and some people are there for decades. ये कोई कठिन बात नहीं है कि कुछ लोग जिंदगी में उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दशकों से वही हैं। It's your attitude towards the word of God. ये आप जो इज्जत परमेश्वर के वचन को देते हो उसके कारण है। Your attitude determines your altitude. परमेश्वर के वचन की क्या इज्जत करते हैं आप, वो इस बात को सीमित करता है कि आप किस ऊंचाई पर जिंदगी में Did you जाएंगे। hear me, guys? आपने मुझे सुना? Your attitude आपकी इज्जत परमेश्वर के वचन के लिए determines your altitude. आपके जीवन की ऊंचाई को सीमित करता है। Whether you are in valleys or you are in mountain top, it's because of the attitude you have towards the word of God. आप खाइयों में, तराइयों में है, या आप पहाड़ों की ऊंचाइयों में है, ये इस कारण है क्या इज्जत आप परमेश्वर के वचन की करते हैं। Because as far as I know, God has not given birth to any disabled babies. क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, परमेश्वर ने किसी अपंग बच्चे को अपने वचन से, अविनाशी बीज से पैदा नहीं For किया। God is a champion, and everyone who is born out of God is a champion. क्योंकि परमेश्वर खुद महारथी है, और जो कोई उसके वचन से पैदा होता है वो महारथी होता है। Amen? God has not given birth to cowards, to परमेश्वर ने failures. डरपोकों को और हारे हुओं को जन्म नहीं दिया। For a champion comes out of a champion. एक महारथी से एक महारथी ही पैदा होता है। That's why the Bible says God always, not sometimes. इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती कि कभी कभी परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर हमेशा। Not on Christmas, Easter and Good Friday. केवल इन 3 दिन नहीं, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे को, Always. लेकिन हमेशा। The Bible says God always leads us in triumph in Christ Jesus. बाइबल कहती है परमेश्वर हमेशा हमें यीशु में अपनी जय में चलने देता है। Some people say, what's God's will for me? God's will for you is victory in every area of your life. कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरी जिंदगी के लिए। परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी के लिए है हर क्षेत्र में आप जय में जिएं। God's will is not struggle. God's will is not defeat. God's will is victory. परमेश्वर की जिंदगी आपके जीवन में समस्याएं नहीं है, हार नहीं है, लेकिन जय है। Amen?